Hi guys, this is part 3 of Unit 4, Chapter 15, and this is the last part. So this is the last topic, Forward Rate Agreement. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था ना यूनिट 5 चैप्टर 11 में फॉर द एक्सचेंज रेट, उसी तरह से फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर अगर सपोज़ कोई बैंक है वो बोलता है, इसमें कोटेशंस कैसे होती है, सपोज़ 36 इज इक्वल टू 1.2, तो वो बोल रहा है कि 3 महीने के बाद, और ये आपका एंड पीरियड है 6th मंथ में, हम इतना 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में हम लोग 1.2% चार्ज करेंगे. सो ये कोटेशंस ऐसे होती है, इसी को हम पहले इन डेप्थ अभी डिस्कस कर लेते हैं. सो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हु वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फ्यूचर मूवमेंट्स इन द इंटरेस्ट रेट्स. By entering into the forward rate agreement, the parties lock in an interest rate for a stated period of time starting on a future settlement date. तो जैसे future settlement date मतलब ये 3 मंथ, तो 3 महीने के बाद ये स्टार्ट होने वाला है, बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट. सो सपोज हम बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपीज़ के लिए. Now the forward rate agreement could have a maturity as long as 5 years. However, the duration of FRA is usually equal to one interest rate period. For example, the borrower or investor may wish to stay floating for the long term but wish to lock in the interest rate for a particular interest payment period of the borrowing or investment in the future, say a 90-day period starting from 2 months in time. तो इस केस में हमारा कोटेशन क्या हो जाएगा, 2 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है, 90 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो ये एंड होएगा अब से 5th मंथ में. तो जो ये डिफरेंस ऑफ मंथ है, दिस इज़ 90 डेज़. Now, the notional amount is not exchanged but rather a cash amount based on the rate differentials in the and the notional value of the contract. तो सेम है जो हम इंटरेस्ट रेट में अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट एक्चुअली हमारा एक्सचेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ही एक्सचेंज होएगा. The FRA is very flexible instrument and can be tailored to meet the needs of both the buyer and the seller to protect themselves against the volatility of interest rates which affect their future borrowing investment. हम ये hedging techniques कर ही इसलिए रहे हैं कि interest rate बहुत volatile होते हैं, तो in order to protect both the buyer and the seller. So the principal advantages of FRAs are contracts can be structured to meet the specific needs of the users. Second, counterparty exposure is limited to the interest rate differential between the market rate and the contract rate. Contract rate मतलब ये जो हमने कोटेशन बोली है ना अभी कि ये 2 to 5 कि 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट रेट कितने परसेंटेज पे हम लोग लोन दे रहे हैं, सपोज 6% पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेट हमारा 6% है. मार्केट रेट जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा वो मार्केट रेट बोला जाता है. Third, administration costs are minimized as there is only one cash flow on the settlement date as opposed to daily future settlement. Fourth, they are off balance sheet items, and fifth, they can easily be reversed or closed out using an offsetting FRA at a new price. सेटलमेंट डेट होता है जब ये हम लोग लोन लेंगे, मतलब अब से 2 महीने के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे लोन लेना, वो सेटलमेंट डेट बोला जाता है. ओके, सो नोटेशन ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. द फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इज नोटेड एज A by B, फॉर इंस्टेंस 3-9. तो अब से 3 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होएगा, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अब से 9 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होएगा. द फर्स्ट नंबर डिनोट्स द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लोन while the difference in the two numbers represents the maturity of the loan, and in this case the rate is for 6-month loan scheduled to commence after 3 months, and the rate of interest for a forward rate agreement is termed as the contract rate. अगर हम बोल रहे हैं 6% पे मिल रहा है, 6% contract rate है. The party who agrees to pay this rate is known as the buyer of the FRA or the long, while the counterparty is known as the seller of the FRA. If the actual rate of interest after A months is higher than the contract rate, the long will receive a payment from the short, and if the rate were to be lower, the long would have to make a payment to the short. So इस केस में हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. फॉर्मूला हम लोग कैसे करते हैं. सो दिस इज़ नोशनल प्रिंसिपल. नोशनल अगेन क्योंकि वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं हो रही है. फ्लोटिंग रेट माइनस फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड रेट मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट और फ्लोटिंग रेट मतलब हमारा मार्केट रेट.
डेज कितने टाइम पीरियड के लिए किया है, 90 डेज़ के लिए किया है तो 90 डेज़, एंड दिस इज़ बेसिस ऑफ डेज। हम कैलकुलेट किस में से कर रहे हैं, 360 में से। आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि ये जो 90 डेज़ है ये 365 डेज़ के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देना, इट विल बी 365 एट बोथ प्लेसेस। अगेन फ्लोटिंग रेट, दिस इज़ द मार्केट रेट। सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। ये जो फ्लोटिंग रेट होता है ये LIBOR होता है, डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ सपोज दैट देयर इज़ अ 3/6 FRA, that is 3/6 FRA on a notional principal amounting 1 million, and this FRA rate is 6%. The FRA settlement is after 3 months, that is 90 days, and the settlement is based on a 90-day LIBOR. So assume that on the settlement date मतलब 3 महीने बाद जब ये स्टार्ट होने वाला है, the actual 90-day LIBOR is actually 8%, जो हमारा मार्केट रेट है। मार्केट रेट इज़ 8%, मतलब जो हमारा फ्लोटिंग रेट है वो 8% चल रहा है। दिस मीन्स दैट द लॉन्ग इज़ एबल टू बोरो एट अ रेट ऑफ 6% अंडर FRA। लॉन्ग मतलब जो बोरोअर है वो 6%, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना बैंक के साथ, ये वाला कि हमें 6% पे वो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रेट। दिस 6% इज कॉन्ट्रैक्ट रेट विच इज़ 2% लेस देन द मार्केट रेट। तो इस केस में FRA पेमेंट होएगा ऑफ $4,904.72। सिंपली हमें यहाँ पे पुट करना है इस फॉर्मूले में। नोशनल प्रिंसिपल कितना है हमारा 1 मिलियन इंटू मार्केट रेट या फ्लोटिंग रेट कितना चल रहा है 8%, फॉरवर्ड रेट जो हमने किया हुआ है 6%, 90 डेज़ के लिए किया हुआ है 90 डिवाइड बाई 360, एंड अगेन दिस 1 प्लस फ्लोटिंग रेट इज़ 8%। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, वी आर गोइंग टू गेट दिस आंसर। ओके, नाउ सिमिलरली देयर इज़ अनदर एग्जांपल। एज्यूम कि इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट है वो 3.5%, मतलब दिस इज़ आर कॉन्ट्रैक्ट रेट और फॉरवर्ड रेट, रेफरेंस रेट और फ्लोटिंग रेट और मार्केट रेट इज़ 4%, नोशनल प्रिंसिपल 5 मिलियन, पीरियड ऑफ FRA कितने टाइम का है 181 का, ईयर पर डे काउंट हम कर रहे हैं 360, अगर ये 365 हो जाएगा तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में 360 है वहाँ 365 हो जाएगा। FRA पेमेंट विल बी, ये सेम फॉर्मूला है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, दिस विल बी नोशनल प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेट इंटू डेज कितने दिन हो गए डिवाइड बाय 360, और यहाँ पे ये डिवीजन में था उसको हमने सिंपली ऊपर लेके आए, सो दिस वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4 दैट इज मार्केट रेट इंटू 360 डिवाइड बाय 181, सो विल गेट दिस आंसर $12,321.64। दो एग्जाम्पल हो गए। Now again two more examples are given for your reference. You may go through them. With this, chapter 15 is completed of unit 4. If you have any doubt, please ask. Take care, guys.